Okay, beta, good evening. So we start this chapter. Quick revision. Chapter is oscillation. We will discuss the simple harmonic motion. So first definition of simple harmonic motion. A motion in which acceleration is directly proportional to displacement but opposite in direction. Acceleration and displacement both are opposite in direction. If displacement is positive, then acceleration is negative, as vice versa. And sometimes this opposite direction will be written as acceleration is directed towards mean position. So this is the definition of simple harmonic motion. Okay. Now, further, for example, this is disk, 100% circular, and it is pivoted at the center. And this horizontal line, this dotted line, is the mean position line, is the reference line, equilibrium line, all displacements are measured from this line. So, for example, this point is A, this cross is A. तो बेटा A पॉइंट के ऊपर इस क्रॉस की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज जीरो बिकॉज इट हैज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जब इसको रोटेट करेंगे फॉर एग्जांपल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द मार्क रीचेस हियर एट द बी so it has covered this distance length of the arc angular distance at the center of the circle theta and the perpendicular distance from this reference line horizontal line is x. तो ये b का आपने reference line से distance लेना है a से नहीं लेना ये reference line. When further rotated and this cross mark is at c, the displacement of the cross mark from the reference line is this vertical line dotted line. This is x naught, maximum displacement, equal to the radius. And angular displacement will be 90 degrees. Then, at this point, this is the displacement. And at this point, the displacement becomes zero. And then at this point, the displacement is negative. And at this point, displacement maximum negative. Now, when you will draw the graph of displacement against theta, and theta is measured anti-clockwise from the reference line, and displacement is measured directly from the reference line, this horizontal line. तो जब एंगल जीरो है बेटा तो क्रॉस मार्क बिल्कुल जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है 90 पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट look it has maximum displacement from the reference line. And then at 180 degree, again, it is at the same horizontal line. So displacement zero. At 270, angle 270. So displacement negative maximum. And then 360, zero. So this is displacement against theta graph when the disk rotates. Now this is sine graph in shape. And it's a question. Is x is equal to x naught sine theta, but how? Look at this triangle. Angle is theta. This distance is x. This angle is 90. And this hypotenuse is equal to radius. And numerically, it is equal to maximum displacement. So this length, this opposite side, being perpendicular is x. Hypotenuse is x naught. This length equal to x naught and theta. So sine theta perpendicular over
hypotenuse mean x over x naught sine theta. So x is equal to x naught sine theta. So this is the equation for this graph. Now suppose we put 180 degree over here. So sine 180 is 0. So x is 0. For example, we check with this 270. Sine 270 is minus 1. So that's why it has a negative maximum displacement, this one. So this is 100% the graph, and this is the equation for this graph. अब बेटा अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं विद टाइम, सो 0 second, 90 degree mean, quarter period, 180 degree mean, half period, 270, 3/4 period, 360, full period. So this is the graph when x and t are plotted. X beta displacement y-axis पे, time t at the x-axis. Now we will change this theta with t. Look, in circular motion we have done angular distance is angular speed into time. So theta is omega t. So this is the equation for this graph when x-axis has time. X is equal to x naught sine omega t. Now this is displacement time graph. And according to physics, gradient of this graph is velocity. तो जब भी बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आप ग्रेडियंट लेंगे वो वेलोसिटी होगा. तो चलें जी ग्रेडियंट चेक करते हैं. At this point, the gradient is maximum positive. But at the stop, turning point, gradient is 0. At this point, the gradient is negative maximum. And at this point, the gradient 0. Again, have the gradient maximum. So, velocity time graph, look initially here, gradient maximum, velocity maximum. And then here gradient 0. So, velocity 0. Gradient at t by 2, negative maximum. So at t by 2, velocity negative maximum. At 3/4 of the period, again gradient 0, so 3/4 velocity 0. और t के ऊपर बेटा फिर पॉजिटिव ग्रेडियंट मैक्सिमम, सो वेलोसिटी एट t मैक्सिमम. अब ये कॉज का ग्राफ, तो इसका हम शॉर्टकट ये लगाएंगे, v इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा. And for this V naught in circular motion, V is equal to R omega, but in this rotation, R is maximum displacement. So X naught omega is equal to V naught. तो इस V naught को बेटा X naught omega put कर दें, theta को omega T put कर दें, and you will get the equation of the velocity. V is equal to X naught omega cos omega T. अगर ये नहीं बेटा तो आप इसका डिफरेंशिएट कर लें इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, यही आपको मिल जाएगी. सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट्स एक्सेलरेशन. ओके, लुक एट द 0 वेलोसिटी हैज 0 ग्रेडियंट, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा बेटा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में t/4 के ऊपर ग्रेडियंट नेक्स्ट मैक्सिमम नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव मैक्सिमम. हाफ पीरियड पे वेलोसिटी का ग्रेडियंट ग्राफ का 0, इसलिए एक्सेलरेशन 0. 3/4 पे ग्रेडियंट मैक्सिमम पॉजिटिव, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव. और फुल टाइम पीरियड पे फिर ग्रेडियंट 0, इसलिए एक्सेलरेशन 0. तो जब ये ग्राफ आप देखेंगे बेटा तो दिस इज नेगेटिव साइन ग्राफ, और इसका हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a नॉट माइनस साइन थीटा. लेकिन सर्कुलर मोशन में a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर एंड r इज x नॉट, इसलिए a नॉट को आप बेटा x नॉट ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, माइनस साइन थीटा उसको ओमेगा टी पुट करें,
So this is the final equation for this graph. तो ये बेटा तीन जो लास्ट वाले ग्राफ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इनको आप वन गो में देखें और इनको आप ऐसे यहां से t/2 पे लाइन ड्रॉ करते हुए इनको 50-50 बेटा आप कट कर लें तो लुक when displacement is positive, velocity has positive portion, velocity has negative portion, लेकिन acceleration 100% नेगेटिव। और जब डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है लेकिन एक्सेलरेशन 100% नेगेटिव, इट मींस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्शन में अपोजिट है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। नंबर टू, जब जीरो डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन भी जीरो, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो फिर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। इट मीन द मोशन ऑफ द डिस्क इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब आप जरा फर्स्ट और थर्ड ग्राफ, फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, थर्ड है एक्सेलरेशन का, इनको जब कंपेयर करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं, लेकिन अगर एक जीरो तो दूसरा जीरो, एक मैक्सिमम दूसरा मैक्सिमम, इसलिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं। सो सिंपल हमारे मोशन मीन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेक्स्ट, अब जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है उसकी ये क्वेश्चन थी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की ये क्वेश्चन थी। अब किसी तरीके से आप साइन थीटा दोनों में खत्म करें तो आप सेकंड इक्वेशन के ऊपर फर्स्ट डिवाइड कर दें, ए डिवाइड बाय एक्स, सो माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा ओवर एक्स नॉट साइन थीटा कैंसल्ड, एक्स नॉट भी कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा ए ओवर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन उसके लिए ओमेगा स्क्वायर को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होगा then A directly proportional to X and opposite in direction। अब ओमेगा कैसे कांस्टेंट हो बेटा? ओमेगा इज एंगुलर स्पीड जिसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, depends on the material constant, it depends on the length of the radius. So while rotation, mass same, g value same, then material constant same, length or radius same, then 1 at omega same, इसलिए ये हमारे पास बेटा ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ये इक्वेशन परफेक्ट हो। अब बेटा अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा से 2 पाई एफ होता है, तो फिर एफ भी कांस्टेंट होगी, और टाइम पीरियड 1/f होता है, इसलिए पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट होंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं ए एट वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एक्स एक्सिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी तो है, इसलिए हमें जो ग्रेडियंट आपके पास है वो नेगेटिव बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं वो नहीं, नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ देखें। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इट मीन ये जो नेगेटिव ग्रेडियंट है ये डायरेक्शन अपोजिट बताता है, स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन जो है ये बता रहा है कि नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। अब अगर ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, मीन वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, मीन ए ओवर एक्स कैलकुलेट करें, तो यहाँ इक्वेशन से चेक करें बेटा वो तो ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब ग्रेडियंट ओमेगा स्क्वायर होगा, और ग्रेडियंट का अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा आएगा। ओमेगा 2 पाई एफ पुट कर दें अगर, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/f करेंगे तो ये पीरियड आ जाएगा। इसका मतलब इस ग्राफ के ग्रेडियंट से आपको एंगुलर स्पीड भी मिल सकती है, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो सकती है, टाइम पीरियड भी आ सकता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट,
अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड ग्राफ को देखें, तो ये जो आपके पास सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये वाला जो ग्राफ है इसकी इक्वल तो ये है, और ये कॉस का ग्राफ है। v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है इसमें से आप साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर कोई आप ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिसमें से साइन और कॉस दोनों खत्म हो जाएं, तो आप इसके लिए जाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मैथ्स। अब साइन की जगह बेटा एक्स ओवर एक्स नॉट पुट करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। कॉस थीटा की जगह बी ओवर एक्स नॉट ओमेगा पुट करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब स्क्वायर इनके ओपन करें, इनको सिंप्लीफाई करें, v को सब्जेक्ट बनाएं, सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब ये जो v आपके पास है बेटा, द स्पीड लीनियर ओमेगा एंगुलर स्पीड नॉट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। दिस x इज द डिस्प्लेसमेंट एट विच वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब एक्स नॉट जो है वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। अब ये जो एम्पलीट्यूड आपके पास है ए स्क्वायर, तो ये आपके पास बेटा इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। अब इसका अगर आपने ग्राफ बनाना है बेटा, सो वेलोसिटी एट द वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एट द एक्स एक्सिस, ये दोनों वेक्टर हैं, नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम ग्राफ को चेक करें बेटा, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वेलोसिटी इज मैक्सिमम पॉजिटिव। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वेलोसिटी जो आपके पास है वो जीरो। तो हम इसी को फॉलो करते हैं बेटा। मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम भी मिल रही है, और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी तो ये जीरो, नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी ये जीरो। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ, जैसे ये बना हुआ है बेटा, और इसकी ये इक्वेशन होगी। सो ये आपके पास बेटा दिस इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और ये आपके पास है बेटा वेलोसिटी और इसका ग्राफ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब ये सारे जितने भी ग्राफ आपने पढ़े हैं, ये उस वक्त वैलिड होंगे इफ द मोशन स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, तो प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन यूजुअली आप एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, पेंडुलम की। तो उस सिचुएशन के अंदर बेटा ये डिस्प्लेसमेंट का जो आपके पास ग्राफ होगा, एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट होता है, तो ये कॉस का ग्राफ होगा, और इसकी ये इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। और इसका अगर आप ग्रेडियंट लेंगे वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए, तो वेलोसिटी का ग्राफ माइनस साइन थीटा का होगा। और इस माइनस साइन के ग्राफ का जब ग्रेडियंट लेंगे एक्सेलरेशन ग्राफ बनाने के लिए, तो ये माइनस कॉस का होगा। सो मेक श्योर कि आपने पहले कंफर्म कर लिया है कि मोशन स्टार्टेड फ्रॉम द मीन और मोशन स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ग्राफ बनाना। ओके, सो रोटेशन ऑफ द डिस्क इज 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी मैं बोल रहा था कि पेंडुलम, तो आप पेंडुलम पे आ जाते हैं बेटा। दिस इज पेंडुलम, आपने इसको हैंग किया हुआ है, वेट इज एक्टिंग डाउन, टेंशन एक्टिंग अप। लेकिन जब आप साइड पे लेके जाते हैं इसको, तो ये डिस्प्लेस कर जाता है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन।
और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉप से होगी वो थीटा। अब अगर वेट के कंपोनेंट्स बनाएं, जैसे ये वेट की लाइन है, तो ये वेट का जो कंपोनेंट होगा ये डब्ल्यू एक्स होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये इसका डब्ल्यू वाई होगा। आप चेक करें बेटा, आपने इसको होल्ड किया हुआ है, आपकी फोर्स इधर कहीं लग रही है, तो आपकी जो फोर्स है वो डब्ल्यू वाई को खींच रही है, उसको बैलेंस कर रही है। डब्ल्यू एक्स आपके पास, ये तो टेंशन के अपोजिट है। So tension is balanced by Wx, and your holding force in this direction is actually balancing Wy. तो आप वेट के इक्वल फोर्स नहीं लगा रहे इस कंडीशन में, आप Wy की इक्वल रखा है, लेकिन आप जब रिलीज करेंगे तो ये जो Wy फोर्स है, ये Wy, it becomes unbalanced. So it will produce acceleration in the pendulum. लेकिन एक और चीज इंटरेस्टिंग, कि यही फोर्स पेंडुलम को वापस भी लेके आएगी एट द मीन पोजीशन। सो द फोर्स विच ब्रिंग्स द डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट बैक टू द मीन पोजीशन, उसको फिजिक्स में कहते हैं बेटा रेस्टोरिंग फोर्स। और ये रेस्टोरिंग बिहेवियर की वजह से आप इसके साथ नेगेटिव भी लगाएंगे। So Wy is unbalanced. So Ma restoring, so negative sign of Wy, W sin theta. W is equal to mg. So mg sin theta minus Ma, and m cancelled. ये दो m cancel करते हैं. So g sin theta is equal to minus A. Mean A is equal to minus g sin theta. This is the acceleration in the pendulum when released. अब बेटा हम ये साइन थीटा के पीछे जाते हैं जी। देखें जरा, ये ट्राइंगल बन रही है, ये टॉप पे एंगल है, एंगल के सामने वाली ये जो साइड एक्स है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इसके सामने वाली साइड फुल लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक्स ओवर हाइपोटेनस एल इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप अपनी इक्वेशन में वहां पे साइन थीटा को एक्स ओवर एल पुट करते हैं जी। ओके, दिस इज एक्स ओवर एल साइन थीटा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स जी ओवर एल। Now, throughout the oscillation, G constant, L constant, ये portion constant, इसलिए A directly proportional to minus X, which is the definition of harmonic motion, इसलिए pendulum oscillate करता है with simple harmonic motion। लेकिन हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है, A इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, और हमारी निकल रही है पेंडुलम की A इज इक्वल टू माइनस एक्स जी ओवर एल। इसका मतलब ये जो G ओवर L है ये ओमेगा स्क्वायर है। सो ऑन कंपैरिजन, ओमेगा स्क्वायर जी ओवर एल हो जाएगा, ओमेगा जी ओवर एल अंडर रूट हो जाएगा, और ओमेगा को अगर 2 पाई एफ पुट करते हैं तो ये फ्रिक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम हो जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पीरियड ऑफ द पेंडुलम हो जाएगा। इसका मतलब पीरियड पेंडुलम का, उसकी लेंथ और वैल्यू ऑफ जी देयर उस पर डिपेंड करता है। अब जरा हम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें लैब के अंदर। आप दो बोर्ड्स लें, फटे लें जनाब दो, उनको एक ही एंगल पे टेबल पे इंक्लाइन करें, इस साइड पे भी आपके पास 20 डिग्री, इस साइड भी 20 डिग्री, और उसके ऊपर बेटा लेड शॉट ग्लास सफेयर यहां रखें, वो भी थोड़ी देर के लिए पेंडुलम की तरह अप एंड डाउन मूव करेगा, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन को भी डिक्रीज करना चाहिए। ये एस सफेयर नीचे आ रहा है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इस मीन लाइन से देखें ये कम होगी, लेकिन एक्सेलरेशन कम नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप पे जी साइन थीटा यू हैव डन इन एस। तो चाहे ये आपके पास बेटा एस इधर हो यहां पे हो, एंगल सेम, जी की वैल्यू सेम, इसलिए एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए इस सिचुएशन के अंदर
लग ये रहा है कि शायद ये पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। और अगर आप इसको जबरदस्ती बनाना भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप क्या करें बेटा, ऐसे ये ट्रैक सब ट्रैक ले लें। तो ऊपर होगा ये सफेयर, तो एंगल ज्यादा होगा, जब नीचे पहुंचेगा एंगल कम हो जाएगा। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है। और उसके बाद बेटा, ये पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है, ये मीन पोजीशन है, ये वाली, ये सेंटर, यहाँ यहाँ पे ये मीन पोजीशन आई है। इससे ये पेंडुलम राइट साइड पे ए पे है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ए पे ये जा रहा है ऊपर की तरफ, स्पीड वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आए, बिल्कुल उसी पॉइंट पे है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, है तो ये राइट साइड पे मीन पोजीशन के, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन अब नेगेटिव कैसे हो गया? अब तो स्पीड इसकी बढ़ रही है क्योंकि ये तेज हो रहा है। तो भाई अब नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। So it mean displacement positive for A and B, but acceleration negative for A and B. लेकिन A पे acceleration negative क्यों है? Decrease of velocity, magnitude decrease। और B पे velocity आपके पास क्यों negative है, या acceleration negative क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन की वजह से। उसके बाद बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वर्टिकल ऑसिलेशन जो स्प्रिंग करता है बेटा, उसमें होती या नहीं होती, वो चेक करते हैं। अब ये स्प्रिंग आपके पास है, इसको आपने लोड कर दिया, लोड लगाने से एक्सटेंड कर दिया, विद इन द लिमिट अगर है तो हुक्स लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू के ई। अब F बेटा वेट है, W कर दिया, के ई मीन चेंज इन लेंथ, डेल्टा लिख सकते हैं, W एम जी कर लें, तो एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा एल। और इसको अगर रीअरेंज करें, तो G ओवर डेल्टा एल इज इक्वल टू के बाई एम। लेकिन पेंडुलम में आपने कहा था कि G ओवर L जो आपके पास है वो तो ओमेगा स्क्वायर है, तो फिर डेफिनेटली K ओवर M भी ओमेगा स्क्वायर होगा। लेकिन अब चेक करना है कि ये ऑसिलेशन हार्मोनिक है या नहीं। ओके, देखते हैं चीज को। आप बेटा इस लोडेड स्प्रिंग को ऑसिलेट करना है, तो हाथ से नीचे पुल कर लें, थोड़ा और एक्सटेंड कर लें। कितनी एक्सटेंशन हो गई? फॉर एग्जाम्पल एक्स। अब स्प्रिंग के अंदर हुक्स लॉ की वजह से जो फोर्स आ गई, वो F इज इक्वल टू के टोटल एक्सटेंशन E प्लस एक्स। अब आपने इसको ऑसिलेशन के लिए रिलीज करना, छोड़ना है, तो ये स्प्रिंग के अंदर ये फोर्स जो है ये ऊपर लगेगी, लेकिन ये जो वेट है वो नीचे लगेगा। तो जब इन दोनों फोर्सेस का आप डिफरेंस लेंगे, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आई एक्सटेंशन टोटल की वजह से, वो ये वेट नीचे लग रहा है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दिस द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के ई प्लस के एक्स, और ये वेट भी बेटा के ई था, जरा देखें, ये एफ इज इक्वल टू के ई, ये एफ इज इक्वल टू वेट था, तो खाली वेट भी के ई की इक्वल था। तो अब इसको डब्ल्यू को भी आप के ई पुट कर दें, के ई से कैंसिल। एक्चुअली ये रिजल्टेंट फोर्स है जिसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है स्प्रिंग के अंदर। अब इसलिए ये एम ए की इक्वल होगी, स्प्रिंग को वापस भी लेके जा रही है, रेस्टोरिंग होगी। सो माइनस एम ए इज इक्वल टू के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस एक्स के बाई एम। अब ऑसिलेट अप एंड डाउन कर रहा है, मटेरियल कांस्टेंट के सेम, मास सेम, इसलिए जब ये वाला पोर्शन सेम होगा तो ये ए डायरेक्टली पोर्शन टू माइनस एक्स, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ये स्प्रिंग वर्टिकली जब ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे इसको एक्स माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर के साथ, ये के बाई एम ओमेगा स्क्वायर, जैसे पहले ही प्रूव कर चुके हैं हम, तो ओमेगा के बाई एम हो जाएगा। ओमेगा को 2 पाई एफ करेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पीरियड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट।
अब सपोज करें बेटा आपके पास ये एक लिक्विड है और इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म वैसे होती नहीं। मोर डेंस लिक्विड नीचे होता है, लेस डेंस ऊपर होता है, लेकिन हम अज्यूम कर लें कि डेंसिटी थ्रू आउट द डेप्थ, थ्रू आउट द हाइट इज है अजम्पशन। अब आप टेस्ट ट्यूब ले लें जो आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, उसको अगर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर रखें, जैसे पानी है सपोज, तो वर्टिकली जब उस रखेंगे तो वो टिल्ट कर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। लेकिन आपने उसको वर्टिकली फ्लोट करवाना है तो उसका तरीका ये है कि इस ट्यूब के अंदर थोड़ी सी सैंड डाल दें, उसको हैवी कर दें, उसमें लोड कोई बढ़ा दें। अब लोड बढ़ाने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब जब वर्टिकली इसको वाटर की सरफेस पर रखेंगे तो इट विल सिंक डाउन पार्शली, पूरी नहीं सिंक करेगी, पार्शली सिंक कर जाएगी। कितनी सिंक कर गई, सपोज हम वो कहते हैं वो लेंथ इसकी क्या है, एल, जो पानी के अंदर चली गई। अब ये थोड़ी देर के बाद ये वाइब्रेट करने के बाद रुक जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। जब ये स्टेशनरी हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल। अब डाउनवर्ड तो हो गई वेट लोडेड ट्यूब की, अपवर्ड क्या है, अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। अब वेट डब्ल्यू, लिक्विड वो, लिक्विड वो है बेटा कि जिसने ये जो उठाया हुआ है इस ट्यूब को, तो वो कौन सा है, जो ट्यूब ने डिस्प्लेस किया हुआ है। इसलिए अप थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो जी इंटू वॉल्यूम, रो लिक्विड का, जी वॉल्यूम वो पानी वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ, और वो होगा एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम। लेकिन एरिया किसका, ट्यूब का, और हाइट वो ट्यूब की जो पानी के अंदर है, जो उसने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो ये जो पोर्शन आपके पास है ट्यूब का, ये जो नीचे वाला बेटा पानी के अंदर, इस पोर्शन का वॉल्यूम ट्यूब का, जितना ट्यूब का वॉल्यूम इमर्स्ड है उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो ये आपके पास वेट हो गया। लेकिन हमें तो ऑसिलेट करना है। क्या करें, हम से इस ट्यूब को फर्दर नीचे आप डिप करें, इमर्स करें। पहले इसकी डेप्थ एल थी, अब और बढ़ा दें एक्स, तो टोटल डेप्थ हो गई एल प्लस एक्स, इसलिए अब थ्रस्ट भी बढ़ जाएगी। तो जो नई थ्रस्ट होगी वो रो जी ए इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम मीन रो जी ए इंटू डेप्थ, और वो एल प्लस एक्स। लेकिन आप जिसको छोड़ेंगे ऑसिलेट करेगी। तो जब आप छोड़ेंगे तो ये जो नई थ्रस्ट है ये ऊपर उठाएगी, लेकिन लोडेड ट्यूब का वेट फिर भी नीचे लगेगा। दोनों का डिफरेंस रिजल्टेंट फोर्स हो। अब अप थ्रस्ट का ये फॉर्मूला था, और वेट का ट्यूब का, लोडेड ट्यूब का वो ये था। आपने खुद जहां पे किया बेटा ये देखें, दिस वन। आप इनको बेटा रीअरेंज करें, ये इससे कैंसल, तो ये आपके पास फोर्स बन गई रिजल्टेंट, जो ट्यूब को अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाने में हेल्प कर रही है। और ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। तो ये एम ए की को होगी, ये रेस्टोर कर रही है, डिस्प्लेस को वापस लेके गई थी, माइनस एम ए रो जी, और रीअरेंज करेंगे तो ये जो ब्रैकेट में सब कुछ लिखा हुआ है दिस इज कांस्टेंट, इसलिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हार्मोनिक मोशन हो गई ट्यूब की भी। और यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो ये जो मैंने सर्कल किया बेटा, दिस पोर्शन इज एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आप सेपरेट कर लें, अंडर रूट लें तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को 2 पाई एफ पुट करें तो फ्रिक्वेंसी आ गई। और अगर इसको रेसिप्रोकल करें 1/f करके टी आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसमें एरिया ट्यूब का है, मास भी ट्यूब का है लोडेड का, और एरिया पाई आर स्क्वायर हो सकता है ट्यूब का। लेकिन अगर डायमीटर दिया हो तो फिर पाई आर को डायमीटर स्क्वायर पुट कर लेते। एनी क्वेश्चन? ओके।
ओके, नेक्स्ट फिर नंबर 4। सपोज आपके पास बेटा ये एक टेबल है और इसकी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, और इस टेबल के दो एंड्स के ऊपर आपने हैवी ब्लॉक्स रख दिए कंक्रीट के, दो स्प्रिंग ले लिए और उनकी ओरिजिनल लेंथ मेजर कर ली। उनका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता है, फॉर एग्जांपल K1 K2। एक ट्रॉली रखें टेबल के ऊपर, ऑलमोस्ट इन दोनों ब्लॉक्स के सेंटर में एक स्प्रिंग उसके लेफ्ट पे अटैच करें ब्लॉक के साथ लगा के, और एक राइट पे लगाएं, जैसे ये नजर आ रहा है जी आपको, तो डेफिनेटली स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएंगे। अब हर स्प्रिंग की एक्सटेंशन निकाल लें, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो सपोज इसकी एक्सटेंशन E1, इसकी एक्सटेंशन E2। अब ट्रॉली ये रेस्ट पे है, अगर हिले भी थी थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट पे इसलिए आ रही है बिकॉज द लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू द राइट साइड फोर्स। अब हुक्स ला लगाएं, F इज इक्वल टू KE, लेफ्ट साइड K1 E1, राइट साइड K2 E2, स्टेशनरी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। लेकिन आपने तो ऑसिलेट करवाना है, तो अगर आप ऑसिलेशन करते हैं तो कैसे करना पड़ेगा? ट्रॉली को हाथ से पकड़ के राइट और लेफ्ट आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, आइदर राइट और लेफ्ट। तो सपोज जैसे मैंने शो किया यहाँ पे, आप स्प्रिंग के अलोंग, स्प्रिंग की लाइंस की अलोंग आपने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, सपोज X सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जितना कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि ये जो स्प्रिंग आपके पास है, सेकंड स्प्रिंग राइट साइड पे, ये कंप्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी ओरिजिनल लेंथ से तो कम नहीं होना चाहिए। स्टिल इसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए, लेकिन पहले से कम है। मैं रिपीट करता हूं बेटा, इसकी अब लेंथ ओरिजिनल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टिल एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो अब इसकी एक्सटेंशन, ये वाला जो स्प्रिंग है उसकी बढ़ गई, X प्लस हो गई, और इसकी एक्सटेंशन में X कम हो गई। तो इसलिए लेफ्ट साइड का जो आपके पास K1 E1 प्लस X हो गई एक्सटेंशन, उसकी वजह से फोर्स ये हो गई, और राइट साइड पे बेटा स्प्रिंग की हो गई E2 माइनस X। अब आपने इसको पकड़ा हुआ है, छोड़ेंगे तो डेफिनेटली बड़ी फोर्स अपना काम दिखाएगी, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या है? ग्रेटर फोर्स, लार्जर फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स। तो अब बेटा लेफ्ट वाली बड़ी फोर्स है, राइट वाली आपके पास स्मॉल है, दोनों का डिफरेंस लें, ये कैलकुलेट करें, तो आपके पास बेटा ये नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और K1 E1 K2 E2 पहले आपके पास सेम थे, इसलिए कैंसिल हो गए ना ये वाले, अब ये। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगी? वो ये वाला काम करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। तो इस रिजल्टेंट को बेटा आप माइनस एम में पुट कर दें, ए आपके पास माइनस एक्स K1 प्लस K2 और एम हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, इसलिए ए डायरेक्टली पोर्शन माइनस एक्स, सिंपल हमारे क्वेश्चन। ओमेगा से कंपेयर करेंगे तो ये वाला पोर्शन ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट लेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को 2 π f करेंगे तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं 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 दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल का मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट्स है, इसलिए K1 K2 इक्वल। तो आप K1 K2 को के ही पुट करेंगे कि दोनों को, इसलिए अब रिजल्टेंट फोर्स फिर के एक्स होगी। अब जब माइनस एम में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2 K/m, ओमेगा हो जाएगा T/m अंडर रूट, ओमेगा को 2 π f पुट करेंगे फ्रिक्वेंसी, और पीरियड का ये फॉर्मूला। अब आपने चेक करना है कि आइडेंटिकल हैं या नॉन आइडेंटिकल हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोसीड करना है। तो बेटा ये हॉरिजेंटल आपके पास ऑसिलेशन ऑफ द ट्रॉली थी,
और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। जब इसकी एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम को, अरेंजमेंट को आप 90 डिग्री टिल्ट करते हैं और ट्रॉली को वर्टिकली ऑसिलेट करवाएं विद द हेल्प ऑफ दीज टू स्प्रिंग, तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। रीजन, क्योंकि जब भी ट्रॉली अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगी ना, तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? वर्टिकल ऑसिलेट करते हुए जी की वैल्यू इन्वॉल्व हो जाती, तो एक्सेलरेशन आपके पास जी तो होगा, इसलिए वो 0 से पास ही नहीं करेगा। मीन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन 9.8 होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन टू द ओरिजिन नहीं बनेगी, इसलिए ये हार्मोनिक मोशन नहीं है अगर आपने 90 डिग्री टिल्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास बेटा, ये नीचे वाली ट्यूब से समझ ले बेटा, ये आपके पास यू शेप ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें आपने इनकम्प्रेसिबल को लिक्विड डाल दिया, अब इसके दोनों एंड्स ओपन हैं, तो दोनों साइड पे लिक्विड का लेवल सेम होगा, ऊपर प्रेशर सेम, इसी लेवल से। अब डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी लिक्विड की सपोज करें रो है, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू हाइट, लेकिन मसला ये है कि इधर भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, इसलिए हमने इसको 2L कर दिया। सो पूरे लिक्विड का जो मास होगा वो 2 ρ A L होगा, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसको ऑसिलेट करना है, तो अगर ऑसिलेट करना है तो डेफिनेटली एक एंड के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, ताकि ये अपने लेवल से इधर से नीचे चला जाए और इधर पहले लेवल से ये ऊपर चला जाए पानी। तो अगर आपने प्रेशर एक्सर्ट किया एट द लेफ्ट और ये एक्स नीचे चला गया, तो यहां दूसरी साइड पे एक्स ऊपर चला जाएगा, तो टोटल जो लेवल का डिफरेंस हो जाएगा लेफ्ट और राइट में, वो तो 2x हो जाएगा। एक्स बेस 2x। अब ये पानी डिस्प्लेस हो गया प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से, और वो जो डिस्प्लेस्ड आपके पास लिक्विड हुआ एम डैश, उसका मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, तो हाइट अब 2x है उसकी। वेट क्या हो जाएगा? मास के साथ जी मल्टीप्लाई करते हैं, वो इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हो गया। अब अगर आप ये प्रेशर रिलीज कर देते हैं, तो ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है, यही सारे पानी को, लिक्विड को एक्सेलरेट करवाएगा। इसका मतलब ये है, जो अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट की वजह से लगेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स वेट डिस्प्लेस्ड का होगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी 2 ρ A G X। अब आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स अनबैलेंस्ड MA की इक्वल, रिस्टोरिंग है तो माइनस लगाना पड़ेगा, चले माइनस MA कर लें, 2 ρ A G X कर दें, रीअरेंज करें, तो फिर वही बात, ये ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट है, तो इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो पानी ट्यूब के अंदर ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये जो सर्कल मैंने किया है ये ओमेगा स्क्वायर है, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे ओमेगा आ जाएगा, 2πf पुट करेंगे फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और पीरियड। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, वो सारे मास में होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो अगर आप नीचे ये सारा मास पुट कर दें लिक्विड का, 2 को कैंसिल करें, रो को कैंसिल करें, ए को कैंसिल करें, तो ये इक्वेशन बनेगी, और ये बिल्कुल पेंडुलम वाली है, इसका मतलब इसका बिहेवियर 100% पेंडुलम है, ये हार्मोनिक मोशन है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो हमें
पेपर में आती हैं और हमें प्रूव करना पड़ता है कि वो हार्मोनिक है, और ये तरीका होता है। जी बेटा, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। आप जो नेक्स्ट है बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें क्या करना है, हमने एनर्जीज को डिस्कस करना है, उनके ग्राफ्स बनाने हैं, कैलकुलेशन सिखानी है आपको। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है डैम्पिंग और रेजोनेंस, ये सारा कुछ करना है, इनके ग्राफ्स हैं, इनकी टाइप्स हैं, ये सारा कुछ करना है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। आप कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ये मैंने आपको जस्ट रिवाइज करवाया हुआ, आपने पहले किया हुआ है, रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आपके क्लास टेस्ट हो सकते हैं, अक्टूबर टेस्ट हो सकता है, वैसे डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्जाम के लिए। तो ये सारा जो है ये नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह करेंगे जी। जी, तो क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लें मुझसे। चल नहीं है तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में